بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا صدق اللہ العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تک آپ حدود اللہ سنتے اور سمجھتے آئے ہوں گے. کچھ حدیں ہیں، چور کی ہے، زانی کی ہے، قتل کی ہے. ان 3 حدوں کے بارے میں پتا ہوگا. فیملی لائف میں میاں بیوی کیسے وائلیٹ کر سکتے ہیں حدوں کو، جبکہ وہ طلاق دے رہے ہوں ایک دوسرے کو، سپریٹ ہو رہے ہوں ایک دوسرے سے، اور جبکہ وہ نکاح کر رہے ہوں. اللہ ان کو حدود کہتا ہے اپنی، اور حدود کی وائلیشن پہ کچھ سزائیں بھی سنا دیتا ہے. پھر کیا کہا اللہ رب العزت نے؟ سورۃ طلاق. سورۃ طلاق مدنی صورت ہے، 12 آیات ہیں، 65 نمبر صورت ہے، اور 2 ہجری کے آخر میں. سورۃ بقرہ کے رائٹ آفٹر، یا ہو سکتا ہے سورۃ بقرہ کے بعد، کیونکہ سورۃ بقرہ میں طلاق کے چیپٹر کو بہت ایڈریس کیا گیا ہے. یہ صورت نام ہی طلاق ہے اس کا، کہ جب نکاح ہوں گے تو سپریشنز بھی ہو جائیں گی. سپریشنز بھی ہو جائیں گی، تو جب سپریشن ہو جائے تو پھر وہ کن ٹرمز اور کن کنڈیشنز پہ ہونی چاہیے، اور ان کنڈیشنز کو آپ کیا کنسیڈر کرو گے؟ حدود اللہ، اللہ کی حدیں. اور ان کنڈیشنز کو وائلیٹ کرنے کو، اللہ کی حدیں توڑنا اللہ کنسیڈر کرتا ہے، اور پھر ان کی پنشمنٹ بتاتا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کو طلاق نہیں دی. اللہ ان کو کیوں ایڈریس کر رہا ہے؟ کیونکہ نکاح میں رول ماڈل، کیونکہ کھانے میں رول ماڈل، کیونکہ پینے میں رول ماڈل، کیونکہ سونے میں رول ماڈل، کیونکہ چلنے میں رول ماڈل، انٹرٹینمنٹ میں رول ماڈل. ہم نے کس کو بنانا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو طلاق میں بھی رول ماڈل انہیں ہی بنانا ہے. اسی لیے اللہ ان کو کہہ رہا ہے. ان کو ایڈریس کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم سب کو ایڈریس کر رہا ہے. آپ نے طلاق کیسے دینی ہے؟ جیسے ہم اپنے رسول کو طلاق دینے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، ایسے طلاق دینی ہے. نکاح ہوگا تو سپریشنز بھی ڈیفینیٹلی ہو جائے گی. جہاں زندگی ہوگی وہاں موت بھی ہو جائے گی. موت جس کی ہوگی اس کو دوبارہ زندہ بھی کیا جائے گا. اٹس اوبیس تھنگ. جیسے یہ چیزیں اوبیس ہیں، ویسے ایسے طلاق بھی اوبیس ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دو، فطلقوہن، تو طلاق کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ لعدتہن، 3 مہینے کی کاؤنٹنگ ہونی چاہیے. کاؤنٹنگ کے ساتھ طلاق دو. وآحصوا العدۃ، اور عدت کو پورا کرو، ٹھیک سے کاؤنٹ کرو، اس کا حساب لگاؤ، گن کے رکھنا. واتقوا اللہ، اور اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا. میں صدقے جاؤں اللہ کے، جب وہ کوئی قانون لاتا ہے وہ کہتا ہے عورت کے ساتھ اگر تمہارا طلاق کا ارادہ ہے تو اس کے ساتھ تعلقات 3 پیریڈ پہلے قائم کرنا چھوڑ دو. مطلب یہ بہت ہرٹفل ہے کہ آپ میاں بیوی کی انٹیمیسی میں بھی ہیں اور آپ اس لمحے کے بعد طلاق دے رہے ہیں. ایسا نہیں کرو. طلاق کاؤنٹنگ کے ساتھ دو. حیض گزرے، حیض کے بعد آپ نے اپنے تعلقات کو ڈیفیوز کر دو. آپ سوئچ کر جاؤ اس کے ساتھ تعلقات سے، کیونکہ آپ اسے طلاق دینا چاہتے ہو. آپ کے ذہن میں ہے میں نے آگے نہیں بسانا. کیوں اللہ ایسا کہہ رہا ہے؟ اس پیریڈ میں پریگننسیاں نہیں ہونی چاہیے. اللہ بچے کی اس کا بھی خیال کر رہا ہے کہ بچے رول جائیں گے. پھر اللہ اس عورت کے ایموشنز کا بھی خیال کر رہا ہے. انٹیمیسی کے بعد ڈیفینیٹلی آپ ایموشنلی اٹیچ ہو جاتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ہر دفعہ. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہے اس کو بھی ڈیٹیچ کرنا شروع کر دو. اس چیز کے ساتھ طلاق دو، کاؤنٹنگ کے ساتھ طلاق دو. اور اللہ سے ڈرنا. لا تخرجوهن من بیوتہن، طلاق دینے کے بعد ان کو گھروں سے مت نکالنا. طلاق کے ارادہ کر لینے کے بعد ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھنا. یہ کاؤنٹنگ یاد رکھنا. اس کاؤنٹنگ کے ساتھ سپریشنز تمہاری ہونی چاہیے. اب مجھے بتائیں کیا اسی 2 چیزوں کو وائلیٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا؟ انہی 2 چیزوں کو وائلیٹ کیا جاتا ہے. اور سمجھا
जाता कि हदूदुल्लाह को वायलेट कर रहे हैं। तलाक के फौरन बाद औरत से घर छीना जाता है, सबसे पहली चीज़ है, उसको घर से निकाला जाता है। और माशरा भी ये समझता है क्योंकि दोनों में तलाक हो गई, अब इनको एक सेकंड एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहिए। अल्लाह कह रहा है साथ रहना मेरी हद है, इसको ना तोड़ना। फिर 3 महीने तक विदाउट ताल्लुकात कायम किए आप एक दूसरे के सामने रहें, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करें। हो सकता है इमोशंस में आके आपने ये फैसला किया। अल्लाह कहता है जज्बात को अपने ऊपर से हटा दो, उसके बाद उसके साथ रह के देखो, फिर भी फैसला बरकरार रखता है तो फिर फैसला बरकरार, और तब तक इकट्ठे रहो। उनको घरों से मत निकालो अनलेस कि वो किसी खुली फहाशी के मर्तकब हो। वतिल्का हुदूदुल्लाह, और ये हदें हैं, ये तलाक और निकाह की हदें हैं। वमन यतअद्दा हुदूदुल्लाही, और जो इसको वायलेट करेगा फ़क़द ज़लम नफ़्सा, तो अल्लाह कहता है उसने अपने आप पर जुल्म किया। ला तदरी लअल्लल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिका अमरा, तुम नहीं जानते, हो सकता है इस काम के बाद अल्लाह तुम्हारे लिए कोई मामला कर दे, कोई तुम्हारे लिए राह निकाल दे। फिर जब वो इद्दत पूरी हो जाए तो फिर उनको निकाल दो घरों से, मतलब अलहदगी इख्तियार कर लो अच्छे तरीके से। फाम से कूहना, चाहो तो अच्छे तरीके से बसाओ, चाहो तो अच्छे तरीके से रुखसत कर। बसाया जाता है इसलिए तलाक दे दी, अब ख्याल आया उसके नाम तो मेरा 2 घर किए हुए थे मैंने, अब क्या करना है। ओहो, अगर तलाक को मैं अप्लाई कर देता हूँ, मैं उसको रिटर्न दे देता हूँ, उसके ख़ानदान को पता चल जाता है तो 2 घर जाते हैं, जायदाद जाती है। अब क्या करना है, उसको ना बसाना है ना छोड़ना है, अब उसको सारी ज़िंदगी अपना बाउंड रखना है। दूसरी शादी भी इसी सूरत में की जाती है, जुल्म करने के लिए की जाती है। यहाँ तो पता ही नहीं है कि अगर आप अच्छे हस्बैंड हैं तो फिर दूसरी शादी कीजिए ना, एक के साथ आपने अच्छा सलूक कर लिया तो सलूक में दूसरे को भी शरीक कर लीजिए। फिर उसको ना बसाएंगे ना छोड़ेंगे, सिर्फ इसलिए के साथ जायदाद जाती है। अल्लाह कहता है छोड़ो भी अच्छे तरीके से, रुखसत करो तो दे दिला कर करो। और कहा जाता है कि क्यों, अगर मैंने मारा है, मैंने बदतमीज़ी की है, मर्द समझता है, तो फिर ये अगर मेरे साथ नहीं रहना चाहती, ये मेरा जुल्म टॉलरेट नहीं करती, तो फिर मेरी जायदाद वापस कर। जुल्म तो आपने किया ना, तो टॉलरेट वो आपकी जायदाद आपसे छीन कर क्यों ना टॉलरेट करे, अपनी लिविंग उससे क्यों ना करे। सबसे पहली हदूद की वायलेशन यही होती है, और इसी वजह से ख़वातीन तलाक से डरती हैं, और इसी वजह से पेरेंट्स कहते हैं बेटी को इस घर से तुम्हारी जनाजा ही निकलना चाहिए, अर्थी ही उठनी चाहिए। मैं जनाजा नहीं कहूँगी, जनाजे मुसलमानों के उठते हैं, अर्थियाँ उठती हैं हिंदुओं की। जब आप ये कहते हैं कि इस घर से तुम्हारा जनाजा निकले तो आप कह रहे होते हैं अर्थी निकले, सती हो जाओ। तो फिर क्यों? क्योंकि आपको पता है हस्बैंड रोक लेते हैं पाकिस्तानी माशरे में, हक महर रोक लेते हैं। तलाक के साथ आपको बीवी पसंद नहीं आ रही, आप उसके साथ बुरे तरीके से 15-20 साल गुजार देते हैं क्योंकि हक महर ना देना पड़े। तो वालिदैन को यही खौफ होता है कि तलाक के बाद आपकी लिविंग एंड लॉजिक कैसे होगी, ये बोझ दोबारा हम पे आ पड़ेगा। इसलिए वो कहते हैं तुम्हारी अर्थी वहीं से निकलनी चाहिए। आप सबसे पहले इसी हदूद को वायलेट करते हो कि उनसे जायदादें छीनते हो, उनसे दिया हुआ छीनते हो। वो जो हक शादी निकाह के साथ अदा हो जाना चाहिए, उसको आप पेंडिंग रखते रहते हैं कि जब तलाक का मामला होगा फिर भी इसे अदालतों में घसीट होगा। अब अल्लाह क्या कह रहा है अपनी हदूद बयान करते हुए, तलाक के बाद या तो अच्छे तरीके से रोक लो या अच्छे तरीके से रुखसत करो। वाक़ीमु शहादत, अदल करना, अदल करने वालों को गवाह कर लेना, ये तुम्हें वाज किया जाता है, नसीहत कही जाती है हर उस शख्स को जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है। जिसका ईमान नहीं है तो फिर उसका दूसरी चीज़ क्या है, मुनाफिकत है ना। मुसलमान होने के बावजूद जिसमें ईमान नहीं है तो फिर अल्लाह आपको, अल्लाह के ये फैमिली लॉज पूरे ना करने वाले को अल्लाह क्या कंसीडर कर रहा है, मुनाफिक। और ये खूबसूरत आयत जो मेरी फेवरेट है सूरत तलाक की, वो मैं यत्तकिल्लाह, ये उसी का हिस्सा है जो आयत नंबर 3 चली आ रही है, 2 सॉरी। वो मैं यत्तकिल्लाह, और जो अल्लाह से डर जाएगा, अल्लाह से डर कर तलाक के मामलात करेगा, अल्लाह से डर के हकदार को हक देगा, अल्लाह से डर के। औरत कमज़ोर है, कुछ नहीं कर सकती, मर्द का नहीं बिगाड़ सकती। 3 लफ्ज़ बोले घर से निकाल दे, 3 लफ्ज़ बोले बच्चे छीन ले, लेकिन अगर वो अल्लाह से डर के अल्लाह की बंदी के साथ मामलात करेगा तो अल्लाह क्या कहता है, यजअल लहू मखरजा, ये ऐसा मुबारक डर है, अल्लाह आपके लिए कोई ना कोई इस वे आउट निकाल देगा, निकलने का रास्ता, एग्जिट, मुश्किल से निकलने का
आपकी फैमिली मुश्किल में है, अल्लाह आपको इस मुश्किल से निकालेगा, आपके लिए वो रास्ता लाएगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, औलाद, ज़ौज, माल की सूरत में अल्लाह आपको ऐसे सप्लिकेट करेगा, कुछ ऐसे तरीके से सपोर्ट करेगा, ला यहतसिब, आपके वहम गुमान में भी नहीं होगा। अल्लाह से डरने वाले की सप्लिकेशन की जिम्मेदारी अल्लाह ले रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल फैमिली लाइफ के ब्रेक हो जाना लगता है, फैमिली लाइफ का टूट जाना लगता है। सबसे बड़ी मुश्किल किसी का आपको वायलेट करके जुल्म कर देना आप पर लगता है। अल्लाह कहता है इस हालत में भी कोई तुम पर जुल्म कर रहा है, तुम अल्लाह से डर के डिसीजन अल्लाह की बुक के मुताबिक लेते हो, अल्लाह की हदूद को वायलेट नहीं करते, तो यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ता निकालेगा और तुम्हें वो देगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, वो देगा। वो मैं यतवक्कल अल्लाह, जो अल्लाह पे भरोसा कर लेगा, जो माशरे से नहीं डरेगा, जो स्पाउसेस के सेपरेशन में माल के जाने से नहीं डरेगा, अल्लाह पर भरोसा करेगा, तो समझो फहुवा हस्बुहु, अल्लाह उसे काफ़ी हो गया। ये माजी का सीगा अल्लाह ने यहाँ इस्तेमाल किया है, हो जाएगा नहीं, मुस्तकबिल का नहीं, फ्यूचर की बात नहीं। जिसने अल्लाह पे भरोसा कर लिया अल्लाह उसे काफ़ी हो गया, दैट्स ऑल, फाइनल। इन्नल्लाह बालिगु अम्री, हर काम तो अल्लाह ही बनाता है ना, जब अल्लाह बनाता है तो उसी पे भरोसा करो। कद जाल अल्लाहु लिकुल्लि शैइन कदरा, अल्लाह ने हर चीज़ की तकदीर के मुताबिक, अंदाजे के मुताबिक तुम्हें अता की है। कोई तुम्हें मिल रहा है ज़ौज की सूरत में, या कोई तुमसे जुदा हो रहा है सेपरेशन की सूरत में, तब भरोसा अल्लाह पे करो, अल्लाह के हदूद को वायलेट ना करो, अल्लाह रास्ते निकाल देगा, मुश्किल से निकाल देगा। और फिर कुछ अहकामात हैं वो गिनने के बारे में, इद्दत के बारे में, तलाक के बारे में। और अल्लाह कुछ वादे कर रहा है, वो मैं यत्तकिल्लाह, अल्लाह ने कहा निकाल देगा, एग्जैक्ट तुम्हें रिस्क देगा जहाँ से तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। रिस्क स्पाउस की सूरत में, औलाद की सूरत में, इज्जत की सूरत से, जहाँ से गुमान भी नहीं होगा, उससे मुसीबत से निकालने का रास्ता बना देता। पहला इनाम, दूसरा इनाम रिस्क देगा, तीसरा इनाम उसका काम आसान कर देगा, चौथा इनाम उसके गुनाह माफ़ कर देता है, पांचवा इनाम बुरे हालात को अच्छे हालात से बदल देता है, छठा इनाम उसको उसकी सोच से उसकी नेकी का अजर इतना बड़ा मिलेगा जो इतना उसने सोचा भी नहीं। और फिर अल्लाह लाता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मिन अम्रिही युसरा, आयत नंबर 4। सूरत तलाक में से सिर्फ तलाक के अहकामात नहीं पढ़ने, अल्लाह का डर भी पढ़ना है कि वो डर जो आपको कितनी बड़ी बड़ी आसानियाँ, कितने बड़े बड़े वादे, कितने बड़े बड़े इनाम अता कर देगा। जो अल्लाह से डर गया अल्लाह उसके काम को आसान कर देगा। यजअल लहु मिन अम्रिही युसरा, उसकी मुश्किलें आसान कर देगा। ज़ालिका अम्रुल्लाहि अनज़लहु इलैहि, अल्लाह के अहकामात हैं जो आपकी तरफ नाजिल किए गए हैं। वमन यत्तकिल्लाह, आयत ख़त्म हो गई, बात कंप्लीट नहीं हुई। जो अल्लाह से डर गया, युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही, उसके बुरे आमाल के जो नतीजे थे, कॉन्सिक्वेंसेस थे, उसके बुरे हालात, अल्लाह उनको बदल देगा, दूर कर देगा। वयुज़िम लहू अजरा, और उसको बड़ा ऊंचा अजर देगा। ये है अल्लाह का वो डर जो आपको इतने बड़े इनामात का हकदार बना देता है। ये वो डर है जहाँ अल्लाह के सिवा आपको कोई नहीं देख रहा होता। ये गैब का डर है, अल्लाह मौजूद नहीं होता लेकिन आपने उसकी प्रेजेंस को मौजूद समझना है। अल्लाह अकबर। और फिर अल्लाह कहता है अगर अलहदगी हो भी जाए तो फिर आप क्या करेंगे, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा कर देंगे। फिर उसका नतीजा क्या होगा, सयजअल्लाहु बाद उसरी युसरा, फिर अल्लाह आपकी तंगियों के बाद आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। और फिर अल्लाह कहता है आयत नंबर 11, कद अनज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रा, यही बातें अल्लाह तुम्हें अपने ज़िक्र अल्लाह ने नाज़िल ही इसलिए किया है ताकि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी की मुसीबतों से निजात दिला, ताकि तुम्हें तुम्हारे खुद साख्ता कवानीन से निजात दिला। ये लॉज, ये हदूद इसलिए हैं, ये जिक्र इसलिए नाजिल किया है अल्लाह ने, रसूल यतलू अलैकुम आयातिल्लाही, वो रसूल तुम्हारे ऊपर अल्लाह की मिरेकल्स तिलावत करते हैं। कुरान मिरेकल है जिसको तिलावत करते हैं आप, मुबय्यिनातिन, वाज़ेह तौर पर, लियुखरिज, ताकि निकाल ले इंसानियत को, वो लोग जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं उनको निकाल ले, किससे, मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, नूर की तरफ ले आए, तारीकियों से निकाल दे। तलाक में अल्लाह की हदूद को वायलेट करना तारीकी है, तलाक में हक तलफियाँ करना तारीकी है, निकाह में हक तलफियाँ करना तारीकी है।
रस्म और रिवाज की पाबंदियाँ करना तारीकी है। अल्लाह ये कुरान इसलिए लाया है ताकि इसके ज़रिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सीरत के तरीक़ों से तुम्हें तारीकियों से रोशनी की तरफ लेकर। सो दिस इज़ द की मैसेज ऑफ दिस सूरा। आप फैमिली लाइफ अच्छी चाहते हैं ना, पीछे 2 सूरतों में अल्लाह ने क्या कहा, माल और औलाद के फितने से आजमाए जाओ। तो ये है माल और औलाद का फितना कि इमोशंस में, चाहे इमोशंस नफ़रत के हों, सेपरेशन के टाइम किस चीज़ के इमोशन होते हैं, गुस्सा, नफ़रत, तो उसमें भी अगर आप इस रोशनी की से गाइड ले लोगे तो फिर आप अपनी ज़िंदगी की तारीकियों से निकल जाओ। आप अपनी फैमिली को भी और आप खुद भी अल्लाह की रोशनी में आ जाओ। सो दिस इज़ सूरा तलाक। नेक्स्ट सूरा इज़ तहरीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्ज़ात अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अम्मा बाद फ़औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 66 नंबर सूरा और 12 आयत। कितनी शॉर्ट सूरतें हैं और कितने बड़े बड़े मैसेज हैं, कितनी प्रिसाइज बात है, कितने प्रिसाइज नोट्स हैं यहाँ। 9 हिजरी या 8 हिजरी में इसका नाजिल होने का टाइम मुफस्सिरीन कहते हैं। जनाब मारिया किप्तिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 7 हिजरी में आप के निकाह में हरम में दाखिल हुई हैं और हज़रत सफ़िया बिन्त हई बिन अख्तब यहूदी सरदार की बेटी थी और इनसे आपका निकाह भी 7 हिजरी में हुआ है, फ़तह खैबर के बाद। तो इससे ये पता चलता है कि 7 हिजरी में ही ऑलमोस्ट नाजिल होने वाली सूरा है। तहरीम, तहरीम, हरीम लिखते हुए ता लगाते हैं। या अय्युहन नबिय्यु, फिर खिताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उनसे खिताब किस लिए है? क्योंकि रोल मॉडल हमारे वही हैं। लिमा तुहर्रिमु, क्यों हराम करार देते हैं, मा अहल्लल्लाहु लक, जिसको अल्लाह ने हलाल कर दिया। वहाँ बुरा सलूक अल्लाह ने हराम कर दिया है, वो अल्लाह की हदूद है। यहाँ अल्लाह क्या कह रहा है, मैसेज क्या है? जैसे अल्लाह के हराम को हलाल कर लोगे तो वो अल्लाह की हदूद की वायलेशन है, ऐसे अल्लाह के हलाल को अगर हराम कर दोगे तो वो अल्लाह की हदूद की वायलेशन है। आप खुशी में, आप मोहब्बत में, आप अपने स्पाउस को प्लीज़ करने के लिए, आप अपनी औलाद को प्लीज़ करने के लिए, अपनी फैमिली लाइफ में बॉन्डिंग अच्छी रखने के लिए अपनी फैमिली के साथ आप किसी हलाल चीज़ को हराम कर देते हैं तो वो क्या है? वो भी अल्लाह की हदूद की वायलेशन है। हमने यही कुछ किया हुआ है। हमने तलाक में, गुस्से में भी बहुत जुल्म किए हैं और अपने मोहब्बत में भी बड़े जुल्म। हमने पेरेंट्स की मोहब्बत में समझा है, हमने बड़ों की इज्जत करने को समझा है, पसंद की शादी हराम, इतना उसको कंडेम किया है, इतना उसको बुरा भला कहा है, उस पर सेमिनार मुनक्कद किए हैं, उसके लिए फतवे लाए हैं, वली की इजाज़त के बगैर औरत तो निकाह कर ही नहीं सकती। वो कोर्ट मैरिज कर ले तो उसको लौटना पड़ेगा। उसके लिए अपने जिरगे, पंचायतें, उसके लिए फैसले, अपने जजमेंट पास किए हैं, अल्लाह के हलाल किए हो तो हराम कराने। विटनेस, मैं गवाह हूँ ऐसी बहुत सी ख़वातीन की जिन्होंने शादी की है अपनी पसंद से और परे पंचायत में, गांव देहात में यही कुछ होता है। थाने कचहरी की सारी सियासत औरत के गिर्द चलती है और फिर उन औरतों को वापस लाया जाता है, उनके वुत्सा के हवाले किया जाता है, हस्बैंड से सेपरेट किया जाता है, बच्चों से सेपरेट किया जाता है और फिर उनको ऑनर किलिंग उनकी कर दी जाती है। अल्लाह ने हलाल करार दिया निकाह को, अब निकाह हो गया है, वो दोनों एक दूसरे के लिए हलाल हैं, जायज़ है मियाँ बीवी, उसको वायलेट करना है। क्यों? प्लीज़ करने के लिए अपने इलाके के नंबरदार को, अपने इलाके के चौधरी को, क्योंकि उसकी परे पंचायत जिरगा इसी सिस्टम के मुताबिक चल रहा है। अल्लाह के हलाल की ओर को हराम करा रोक दो, अबेंडन कर दो। तब तक ही मर्ज़ात अज़वाजिक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, जिनकी हदीस मुबारक है, तुम में से बेहतरीन वो है जो बीवी के साथ अच्छा है। यहाँ कहा जा रहा है बीवी की खुशी के लिए आप हलाल को भी हराम करार नहीं दे सकते, नहीं कह सकते। अल्लाह माफ़ करने वाला है। कद फ़रज़ल्लाहु लकुम तहिल्लता अयमानिकुम, अल्लाह ने फ़र्ज़ कर दिया है तुम पर कसमों की पाबंदी को। वल्लाहु मौलाकुम, वही तुम्हारा वली है, उसके साथ रिश्ता बरकरार रहेगा क्योंकि वो इल्म वाला भी है और वो वाइज़ भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत तहरीम
ازواج کے ساتھ، میں باقی کی طرف نہیں جاؤں گی، اس کی ڈیٹیل کی طرف، اس حکم سے جو ہمیں مورل لینا ہے، کیونکہ اس سال میری سمری کا جو سارا وہ ایمفیسائز ہے اور جو سارا ٹاپک ہے وہ خوف ہے. وہ خوف جن کی بنیاد پر ہم غلط کام کرتے ہیں، اور وہ خوف جو ہمیں ہونے چاہیے ایکچوئل اور ریکوائرڈ ہے، جو ہمیں بڑی مصیبت سے نجات دلا سکتے ہیں، وہ ہم اپنے اندر کیسے پیدا کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ازواج کے ساتھ یہ معاملہ بنا کہ آپ کو ان کی وجہ سے مطلب فیملی میں ڈسٹربنس ہوئی، جس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ یہ حلال چیز بھی ہے، شہد ہے، تو میں اس کو نہیں کھاؤں گا آج کے بعد، یا یہ بیوی میرے لیے حلال ہے تو میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا اپنی دوسری بیویوں کو راضی کرنے کے لیے. تو اللہ اس کے اوپر یہ قوانین لایا ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم لوگوں سے ڈرتے ہو، اللہ سے توبہ کرو اس بات پر، اس خوف سے توبہ کرو کہ تم لوگوں سے ڈرتے ہو. اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہارا مددگار ہوگا، جبریل تمہارے مددگار ہوں گے، اللہ صالح مومنین کو تمہارا مددگار پیدا کر دے. کسی بھی اتھارٹیٹیو انسان سے مت ڈرو، اور اس کے ساتھ ساتھ ملائکہ تمہارے مددگار ہوں گے. آپ اپنے سپاؤس کو پلیز کرنے کے لیے اللہ کے حدود کو وائلیٹ مت کیجیے، اللہ کو ناراض مت کیجیے. اللہ کو ناراض کر دیا تو بڑا نقصان کیا، اور اگر اللہ کو راضی کر دیا، اللہ کہتا ہے تم فرشتے تمہارے مددگار، صالح مومنین تمہارے مددگار، اللہ خود تمہارا ولی، جبریل تمہارا مددگار. اللہ کہتا ہے ولایت حاصل کرنا چاہتے ہو نا، اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو نا، اس کے لیے تمہیں چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے قانون کو پورا کرنے کے لیے قربان کر دو اپنی خواہشات کو، اللہ تمہیں ولایت کا مقام عطا کرے گا، وہ گریڈز عطا کرے گا جو جہانوں میں سے کسی کو نہیں کیا ہوں گے تمہیں. اصل اللہ آیت نمبر 6، اللہ لائے گا تمہارے لیے، اللہ تبدیل کر دے گا، تمہیں ایسے زوج عطا کرے گا جو ان سے بہتر ہو. مسلمات، اللہ کے فرما بردار، مومنات، ایمان والے، قانتات، فرما بردار، کنٹینٹ پیپل، تائبات، اللہ کی طرف پلٹنے والے، عابدات، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنے والے، ساحیات، اللہ کے لیے ایکٹیوسٹ خواتین، سیبات و ابکارا. بہت بڑی بات ہے، اللہ نے کہا پہلے سے خامت والیاں اور کماریاں. اللہ ریپلیس کر دے گا. اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گارنٹی دے رہا ہے، اپنے سپاؤس کی رضا مت چاہو، اللہ کی رضا کے لیے سپاؤس کے ساتھ رشتہ قربان کر دو. ڈسٹرب ہو رہے ہو، ڈسٹرب کر دو اپنی فیملی لائف کو، اللہ تمہیں ایسی فیملی لائف عطا کرے گا جیسے وعدے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے، وہی وعدے اللہ تمام مومنین کے ساتھ کرتا ہے. آپ کو ریپلیس کر دے گا، ایسے زوج عطا کرے گا جو ایسے ہوں گے. اور اس میں اللہ پہلی صفت کیا بتا رہا ہے؟ خامد والیاں. پہلے سے خامد والیاں، پھر کنواریاں. اور آپ مر رہے ہوتے ہیں کنواری کے ساتھ شادی کرنے کے لیے، آپ کو رشتے بھی پروفائلز بھی بنائی جاتی ہے تو کنواریوں کے لیے. انمیرڈ بیفور اسٹیٹس ہونا چاہیے آپ کا، سنگولر اسٹیٹس. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو، ڈرو اس آگ سے جو تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو لپیٹ میں لے سکتی ہے. وقودھا الناس، جس کا ایندھن انسان ہوں گے. یہاں آگ لکڑیوں سے جلائی جاتی ہے، وہاں انسانوں کو لکڑیوں کی جگہ جلا کے وہ آگ روشن کی جائے گی. والحجارۃ، اور پتھر پگھل جائیں گے. لاوا، جب لاوے کو کیوں، اس کی انٹینسٹی اس کی جو بہت زیادہ ہوتی ہے، گرمائش اس میں، ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ پتھر اتنا بوائل ہوتا ہے وہ لیکوڈ کہ پتھر اس ہیٹ پر پگھل جاتا ہے اور وہ لیکوڈ بن جاتا ہے. جہاں پر اللہ کہہ رہا ہے پتھر پگھلے ہوئے لیکوڈ سے جہنم کی آگ جلائی جائے گی اور انسانوں کے ساتھ، اس آگ سے آپ اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کریں، اللہ کے حدود کی پاسداری کریں. آپ تو یہاں اچھی فیملی لائف چاہتے ہیں نا. اللہ کہتا ہے یہ تو زندگی ختم ہو جانے والی ہے. اس زندگی کے پلیئر کے لیے، اس زندگی کے سیٹ اپ کے لیے اس آگ کا ایندھن نہ بن جانا. جس فیملی کی محبت میں تم اللہ کے حلال کو حرام کرنے لگے ہو، اسی فیملی کو اس آگ سے بچا لو. اصل محبت تو یہ ہے نا کہ آپ اس ہسبینڈ کو، اس وائف کو، اس انسان کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہوئے، اپنے بچوں کو اللہ کے بندے سمجھتے ہوئے، آپ ان کو اس آگ میں جانے سے بچا لیں. خود بھی اسٹرکٹلی اللہ کے قانون پہ عمل کر کے، اور ان کو بھی ان کانسیکوینسز کا شکار ہونے دیں جو اس قانون کو ماننے کی شکل میں ان کو بھوگنے پڑے گے. تب جا کے وہ اس بڑے الٹیمیٹ نقصان سے بچیں گے.
اللہ نے کہا اپنی فیملی کو بچاؤ. فیئر اینڈ فیملی, دیز آل سورز آر ٹویلڈ ان دا واٹرز آف, میں کہوں کہ فیملی اینڈ فیئر. پھر اللہ کہتا ہے پھر کیا کروں گا میں تمہارے لیے, پھر میں تمہیں لا تعتذروا اليوم آج معذرتیں پیش نہ کرو اے لوگوں جو کافر, آج تمہیں بدلہ ملے گا. اور اے ایمان والو پلٹو اللہ کی طرف, توبۃ نصوحا, پکا پلٹنا, پکی توبہ کرو. عسیٰ ربکم, آیت کب نازل ہو رہی ہے؟ 9 ہجری میں. دین کمپلیٹ ہو رہا ہے. اب تمہاری 23 سال میں ایک چیز کو پریکٹس کر رہے ہو تو اب تمہیں اس چیز کی عادت ہو جانی چاہیے. اب تمہیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو پورا کرنے کی بھی عادت ہو جانی چاہیے. اللہ کا خوف آ جانا چاہیے. اب اللہ کی طرف پلٹو, ایسا پلٹنا جیسے پلٹنے کا ہر حق ہے. عسیٰ ربکم, ان قریب اللہ تمہارے لیے تمہارے برے حالات کو اچھے سے بدل دے گا. تمہیں ایسی جنتوں میں نہ داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اس دن اللہ رسوا نہیں کرے گا نہ اپنے نبی کو اور نہ جو نبی کے طریقوں پر عمل کر کے آئے ہیں, جو نبی کی سیرت پہ اپنی معاشرت رکھ کے آئے ہیں. اس دن کی رسوائی سے بچا لے گا اللہ. دنیا آخرت کی رسوائیوں سے ہمیں بچائے. اور وہ لوگ جو نبی کے ساتھ تھے ان کو ان کا ساتھ نصیب کرے گا. نورہم یسعی بین ایدیہم, وہ لائٹ ان کے آگے آگے چلے گی, ان کے دائیں طرف چلے گی. یقولون, وہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا, اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے ہمارا نور کمپلیٹ کر دے. وہ دنیا میں ایسے مانگا کرتے تھے. واغفر لنا, اور ہمیں بخش دے. انک علی کل شیء قدیر, تو مکمل اختیار رکھتا ہے ہمیں بخشنے پر. نور کے وعدے ہیں حقوق العباد پورا کرنے, نور کے وعدے ہیں فیملی کو جہنم سے بچانے پر, نور کے وعدے ہیں پروٹیکٹ کرنے پر, نور کے وعدے ہیں رزق خرچ کرنے پر. اللہ اکبر کبیرہ. وضرب اللہ, اچھا یہ باتیں اللہ کرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ ضرب اللہ مثل الذین کفروا. تم فیملی کی بات تمہیں کر رہے ہیں نا, تم نے اپنی فیملی کو سب سے پہلے تم فیملی پروٹیکشن کو کیا سمجھ رہے ہو کہ فیملی کو بچانا ہے. فیملی کو تم بچانے کو سمجھتے ہو, فیملی کو کبھی سپریٹ نہیں ہونے دینا. اللہ کہتا ہے حلال اور حرام کو قائم رکھو. فیملیاں سپریٹ ہوتی ہیں ہو جائیں, فیملیاں قائم رکھتی ہیں ہو جائیں. تو اللہ تمہیں مثال دیتا ہے 2 عورتوں کی, ایک نوح کی عورت, ایک لوط کی عورت. پیغمبر تھے دونوں کی قوموں پر عذاب آیا, لیکن دونوں کی بیویاں نافرمان تھیں اللہ کی. اگر اللہ کی نافرمان ہیں تو ان کی بیویاں اس آگ کا شکار ہوئی. چلو تم تو بچ جاؤ گے ان پیغمبروں کی طرح. سپریشن کی صورت میں تم وائلیٹ نہیں کرو کہ اللہ کے حدود کو, تم اپنی طرف سے احسان کا سلوک کر دو گے بچھڑتے ہوئے اور ملتے ہوئے, تو تم کیا ہوگے؟ تم نوح اور لوط کی طرح بچ جاؤ گے. ان کی بیویوں کی مثال اللہ دیتا ہے, اور اللہ کہتا ہے انہوں نے کیونکہ خیانت کی امانت میں تو اللہ نے انہیں نار میں داخل کر دیا. پھر اللہ بیان کرتا ہے مثل الذین آمنوا, ایمان والی کچھ عورتوں کی مثال کرتا ہے. 2 عورتیں, امرأۃ فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام. آپ اللہ کو راضی کرنے میں خاوند کو ناراض کرتے ہیں, اتنا ناراض کرتے ہیں کہ وہ آپ کی جان لے لیتا ہے. آج تو ایسا کوئی ہسبینڈ ہے ہی نہیں فرعون جیسا جو اپنی بیوی کو اللہ کے احکامات ماننے پر جان لے لے. زیادہ سے زیادہ ہسبینڈ یہ کہہ سکتے ہیں میری شام کو چائے کا ٹائم ہے, تم کدھر 10 پہ جا رہی ہو. ہاں, تھوڑا سا موڈ خراب کر سکتا ہے آپ کا ہسبینڈ. اللہ کہتا ہے میں آخری حد تک برے خامد کی مثال تمہارے سامنے رکھتا ہوں. جس عورت کا خامد فرعون تھا میں اس کی مثال دیتا ہوں. جب اس نے اللہ کو راضی کرنے میں خامد کو ناراض کیا تو کیا اسے کیا ملا, اس نے کیا پایا؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنا من فرعون وعملہ ونجنا من القوم الظالمین. اللہ نے اسے فرعون سے بھی نجات دی, اس کے لیے وہاں گھر بنایا جہاں کسی کے لیے نہیں بنے. اسے وہ مقام محمود پر وہ مقام ملے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کو راضی کیا, خامد کو راضی نہیں. خامد تو شرک سے راضی ہوتا تھا, خامد تو خود کو انا ربکم الاعلی کہوا کے راضی ہوتا تھا. رازق میں ہوں, روزی تمہیں میں دیتا ہوں. ہم میں سے کتنی بیویاں جو سمجھتی ہیں کہ خامد روزی دیتا ہے. طلاق اس لیے نہیں ہوتی, کیوں نہیں لے سکتے؟ برا خامد ہے, کیونکہ وہ روزی ختم ہو جائے گی نا, گھر ختم ہو جائیں گے, چھت ختم ہو جائے گی. ہم نے سمجھا کہ خامد چھت دیتا ہے, ہم نے سمجھا کہ یہ رشتہ ہمیں
बचा लेगा आपके अज़ाब से। अल्लाह कहता है ऐसा नहीं है। फिर आसिया का घर हमने वहाँ बनाया और उसको कुरान में मेंशन किया ताकि क़यामत तक आने वाली मोमिन औरत को पता चल जाए कि उसने किसको राज़ी करना है, अल्लाह को राज़ी करना। बस अल्लाह तुम्हें मिसालें बयान करता है। आपको अब पता चला कि पाकिस्तानी उलमा, बरसगीर पाक व हिंद के उलमा कुरान तक औरतों को क्यों नहीं आने देते, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि औरत को तो अल्लाह को राज़ी करने का कहा गया है। अल्लाह अकबर। फिर उसने कहा कि मेरे लिए घर बना मेरे रब जन्नत में ते अपने पास बना और मुझे फ़िरौन से और उसके अमल से निजात दे, उसके जुल्म से निजात दे और कौम ज़ालिमीन से। वह मरियम इब्नत इमरान, मरियम इमरान की बेटी का भी जिक्र कीजिए, उसकी मिसाल सुनाइए। मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ जिसने अपने नामूस की हिफाजत की, फिर हमने उसको अपनी तरफ से रूह अदा की। वसद्दक़ता बिकलिमाति रब्बिहा, और तेरे रब की बातें और तेरे रब की किताबें सच्ची हैं, तेरे रब के वादे सच्चे हैं। उसको राज़ी करोगे तो वही मकाम पाओगे जो आसिया और मरियम ने पाया। अल्लाह करे हम उन्हीं के साथ हों। वकानत मिनल कानितीन, कानितईन, वो दोनों फर्मा बरदार थी, वो अल्लाह की फर्मा बरदारी में नाम लिखवा गई। आज सुनहरे हरूफ, आज मोजज़ा, कुरान मोजज़ा है, क़यामत तक के लिए उनका जिक्र अल्लाह ने महफूज कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। आप तलाक के मामला चाहते हो, आप निकाह के मामला चाहते हो, आप फैमिली लाइफ गुजारना चाहते हो, ऐसे गुजारो जैसे नूह अलैहिस्सलाम ने, लूत अलैहिस्सलाम ने गुजारी, जैसे आसिया अलैहिस्सलाम ने गुजारी, जैसे मरियम अलैहिस्सलाम ने गुजारी। मरियम अलैहिस्सलाम को जो बातें सुननी पड़ी वो जिगर छलनी कर देने वाली बातें। उनसे कहा गया मरियम, कुरान ने अल्फाज को रिकॉर्ड किया है, तेरी माँ और बाप तो बड़े अच्छे आदमी थे, तेरी माँ तो बड़ी पाकिरदार औरत थी, बड़ी पर्देदार थी, बड़ी नेक थी, और तू कैसा गुनाह करके आई है, बेहयाई वाला काम करके। लेकिन वो सुना अल्लाह की रज़ा के लिए। खुद की कैफियत ये थी, कहा करती थी कि काश मैं ये दिन आने से पहले मर जाती। मरियम का नाम ही किसी को पता ना होता। ये पता नहीं था कि जो अल्लाह के लिए मिटा देता है खुद को, जो अल्लाह के लिए मलामतें झेल लेता है, उसका नाम तो क़यामत तक के लिए अल्लाह ने, ईसा का नाम भी अल्लाह नहीं लेता, ईसा इब्ने मरियम, मरियम के नाम लेने के सिवा उसका नाम भी अल्लाह ऐसे बाकी रखता है। फेम चाहते हैं ना, मकाम चाहते हैं, तो ये है तरीका अल्लाह कहना। ये हमेशा के लिए मैं तुम्हें मिसाल बना के पेश करता हूँ। सूरत तलाक, सूरत तहरीम और सूरत मुल्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सूरह मुल्क 67 नंबर सूरह है, 30 आयात है, और सेकेंड टाइम स्पैन ऑफ मक्का 4 से 5 नबी में, और ऑलमोस्ट उलमा का इस पर इजमा है कि 4 नबी में नाज़िल। ये इतनी सारी मदनी सूरतें, ये मुसब्बिहात ख़त्म होती हैं सूरत मुल्क में। बहुत इंपॉर्टेंट सूरत है। तिरमिज़ी में इब्ने अब्बास से रिवायत है, मैं इसमें बहुत सी हदीस है, मैंने सिर्फ एक आज की समरी के लिए कोट की है। ये सूरत अज़ाब कब्र के लिए रुकावट है और निजात देने वाली है। 30 आयात है, महीने के 30 दिन है, आपको हर डे के लिए ये काफ़ी। आपने इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में एक महीने से ज़्यादा तो नहीं जी सकते ना, फिर दूसरा महीना शुरू हो जाता है, फिर आप दूसरा महीना जीना शुरू करते हैं। तो हर डे के लिए ये सिक्योरिटी फराहम करती है, आपको रेस्क्यू करती है अज़ाब कब्र से और आग से। और एक और हदीस का मफ़हूम है कि ये झगड़ा करेगी जब तक कि अपने पढ़ने वाले को जन्नत में दाखिल किया। तो जस्ट इसकी रेसिटेशन नहीं करनी, इसका मैसेज लेना है, इसको समझना है, इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी। हमने कुरान का मुफस्सिर नहीं बनना, मुदब्बिर बनना है। तो तफसीर से रिलेटेड बातों को हम मुफस्सिरीन के लिए छोड़ देते हैं, और कुरान आम आदमी से कैसा रिलेशन चाहता है, कुरान अपने बारे में, कुरान कैसा ताल्लुक़ चाहता है। अल्लाह क्या कहता है, अफला यतदब्बरून अल कुरान, तफस्सरून अल कुरान का वर्ड अल्लाह यूज़ कर सकता था, अल्लाह ने नहीं किया। कुरान की तफसीर करो, उसकी डिटेल में जाओ, उसकी डेट्स देखो, वो नाजिल होने की आयत, नाजिल होने का टाइम देखो, नाजिल होने की सिचुएशन देखो। कुरान ये रिकॉर्ड नहीं करता। तदब्बुर करो। अल्लाह आपसे क्या डिमांड करता है, आपने कुरान का मुदब्बिर बनना है, उसको सोचना है कि मेरे लिए इसमें अमल का क्या मकाम है, मेरे सिचुएशन का कौन सा सोल्यूशन है। कुरान अपने साथ ये रिलेशन चाहता है। अगर ये रिलेशन नहीं है, अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, फिर चाहे तफसीर पढ़ क्या लिख लो, फिर चाहे तफसीर पढ़ा लो,
आपके दिल पर ताला है और ताला ही लगा रहेगा। अगर आप कुरान के साथ तदब्बर का रिलेशन नहीं समझते, ये नहीं समझते कि ये आयत मेरे लिए है, इसमें से मैंने क्या लेना है, इस खजाने में से मेरा हिस्सा कौन सा हीरा है, कौन सा मोती है, तो फिर आपके दिलों पर ताला है ज़रूर से। फिर नमाजें, कुरान, दर्स, तफसीर पढ़ना, अहकामात निकालना, शरीयत की बातें करना, वो आपको दुनिया में फ़ायदा तो दे सकता है, मकाम तो दिलवा सकता है, आपके टर्बन का साइज़ बड़ा हो सकता है आपके मदरसे को फंड मिल जाए, संगे मरमर लग जाए, कालीन बिछ जाए, एसी लग जाए, एतकाफ में सहूलतें मिल जाए, लेकिन सॉरी आपके ईमान के लेवल आपको रोशनी अता नहीं कर। रोशनी सिर्फ तदब्बर अता करेगा। दिल का ताला कैसे खुलेगा? उसकी चाबी क्या है? वो गौर व फिक्र करना है, वो सोचना है मेरे लिए आयत उतरी है, मैंने क्या करना है अब इस आयत के मुताबिक, मेरे अंदर कौन सी खराबी है, मेरे अंदर कौन सा इम्प्योरिटीज़ है जिसकी मैंने सफाई करनी है। बस कुरान ये डिमांड करता है आपसे। अल्लाह कहता है मुबारक है, बड़ी मुबारक है वो ज़ात, हर लम्हे बढ़ने वाले फ़ायदे को कहते हैं बरकत, मुबारक होना। अल्लाह कहता है वो ज़ात मुबारक है जिसके हाथ में बादशाहत है, और शुक्र है कि उसके हाथ में बादशाहत है, वरना हमारा बस चले तो हमें जो नाराज़ करते हम उसको तो रिस्क भी रोक लेते। इंसान का बस चले तो वो तो स्माइल भी नहीं, स्माइली फेस भी नहीं देता, जो उसको सताता है वो तो उसके साथ वो भी रोक लेता है। शुक्र है कि हर चीज़ के ख़जाने उसी के कब्ज़े, वो बादशाह है। इसके 2 पार्ट हैं, मैंने इसको 2 पार्ट्स में कर लिया है, हर पार्ट के मैंने फिर 3 हिस्से कर लिए हैं। पहला पार्ट थ्रेट है, और ये बताया है अल्लाह ताला ने, और इसका की मैसेज इस सूरत का एक है कि ये दुनिया टेस्ट है, पनिशमेंट नहीं है। और जो लोग इस दुनिया को दूसरों के लिए पनिशमेंट बना देते हैं, उनके लिए आखिरत पनिशमेंट है। ये दुनिया टेस्ट है। अल्लाह खुद कह रहा है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, नॉट परफेक्ट, इम्प्रूव अमल, अहसन कंपैरेटिवली हर दफ़ा पहले से बेहतर। पिछले साल मैं नमाज़ पढ़ती थी, अलहम शरीफ का तर्जुमा मेरे ज़हन में रहता था। इस साल मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान में से मैंने कुछ और अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है। अब जहाँ पर खौफ की आयत आती है, मुझे ख्याल आता है कौन सा खौफ रिक्वायर्ड है और कौन सा खौफ मुझे किस डिमांडिंग जो मेरी ज़िंदगी में फोर्स्ड खौफ है उससे निकालने का। अब तिलावत करते हुए भी मुझे कुछ समझ आने लग जाती है। मेरी हर नमाज को इम्प्रूव होना चाहिए। अगर आप इम्प्रूवमेंट के सफ़र पे हैं, अल्लाह कहता है मैंने बस आप समझे उस टेस्ट में पास हो गए। पर्पस ऑफ दुनिया, पर्पस ऑफ लिविंग, डेथ, पर्पस ऑफ स्काइज, पर्पस ऑफ अर्थ, पर्पस ऑफ सप्लिकेशंस, पर्पस ऑफ फूड, पर्पस ऑफ फूड के लिए जानवर बनाए गए, नबातात उगाए गए, सब चीज़ का पर्पस क्या है? टेस्ट है। आप टेस्ट के लिए दुनिया में भेजे गए, एग्जामिनेशन सेंटर में। रिजल्ट मत निकाल के बताइए लोगों को ये काफिर है, ये मुनाफिक है, दूसरों के अमल मत जज कीजिए। जो लोग दूसरों के अमल देखते देखते अपना टेस्ट ब्लैंक लेकर जाएगा वो नुकसान उठाएगा, वो इस टेस्ट में फेल हो जाएगा। रिजल्ट का दिन आने ही वाला है। ये दुनिया क्योंकि टेस्ट के पर्पस से बनाई गई है, तो यहाँ पर आप पार्टी एक्सपेक्ट मत कीजिए। आप ये मत समझिए कि आपके हालात हमेशा अच्छे रहेंगे। फैमिली है तो बस फैमिली हमेशा बनी रहेगी, माल है तो हमेशा रहेगा, औलाद है तो हमेशा फरमाबरदार रहेगी। कभी जान, वो अल्लाह ने सूरत बकरा में बताया ना, जानों के भी घाटे आ जाएंगे, माल के भी आ जाएंगे, बागात के भी आ जाएंगे, किसी भी चीज़ का आ सकता है। तो प्रिपेयर, टेस्ट में आप टेस्ट दे रहे होते हैं, पार्टी नहीं कर रहे होते। आपको पर्पस समझा दिया अल्लाह ने पूरी कायनात का, आपके आने का। कुरान ने सिर्फ एक सूरत मैं समझती हूँ काफ़ी है, अगर किसी को समझ आनी है उसके लिए सूरत काफ़ी है। पहला अल्लाह ने बताई अपनी पावर, मेरी पावर का पहला इस्तेमाल अल्लाह ने क्या कहा किया है? अल्लाह ने बताया मैं बादशाह हूँ, अल्लाह किंग है, अल्लाह पूरी पावर रखता है। अल्लाह ने पावर रख के क्या की? पहली बात क्या की अल्लाह ने? अल्लज़ी खलक़ सबअ समावात, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, उसने डेथ बनाई और ज़िंदगी बनाई। अल्लाह को हमारे देखने में जिक्र पहले करना चाहिए था ज़िंदगी और फिर मौत का, क्योंकि पहले हम जिंदा हैं, हमें फिर मौत आती। इसका क्या मतलब है? पहले हम मरेंगे तब जाके दोबारा जिंदा हो। उस जिंदगी की बात है जो ना ख़त्म होने वाली है। अल्लाह कहता है टेस्ट तो वो, रिजल्ट तो वो है ना। एग्जामिनेशन सेंटर में कितनी देर के लिए जाते हैं? कितनी देर हो गई? 2-2.5
पूरे साल की तालीम में से कितनी देर के लिए? 2-2.5 घंटे के लिए टेस्ट देने जाते हैं। तो पूरे साल की जैसे हम जिंदगी जीते हैं, वो आखिरत की जिंदगी है ना, खत्म होने वाली, उसका टेस्ट लेना है। इधर आपका सेंटर बन गया है प्लेनेट अर्थ। इस प्लेनेट पर जैसे आपकी ज़िंदगी गुजरेगी, उसके बाद जो आने वाली ज़िंदगी होगी वो असल ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी है ही नहीं जिसको हम ज़िंदगी समझी बैठे हैं। इसको तो अल्लाह डेथ के साथ कंपैरिजन कर रहा है। यहाँ की मौत और वहाँ की ज़िंदगी अल्लाह ने इसलिए की है, बनाई है कि अल्लाह आपसे टेस्ट ले। फिर वो ज़ात जिसने 7 आसमान बना दिए हैं, आप उसमें नहीं देखेंगे कोई झोल, जाके देखें झोल देखें। अल्लाह ने जो स्काई है दुनिया वाला, उसको उसकी डेकोरेशन की बात की है पहले पार्ट में। वो अल्लाह जो कुदरत रखता है आसमानों को बनाने की, वो कुदरत रखता है तुम्हारी ज़िंदगी के टेस्ट में तुम्हें पास या फेल करने की। अल्लाह करे हम सब पास हो। स्काई एंड अर्थ एंड बिलीवर एंड नॉन बिलीवर, मौत और ज़िंदगी के साथ अल्लाह ने बिलीवर और नॉन बिलीवर, और स्काई और अर्थ के साथ बिलीवर और नॉन बिलीवर की मिसाल दी है। आयत नंबर 5 से, वल्लज़ीना कफ़रू वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम, उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है। जब भी वो उसमें डाले जाएंगे वो आवाज़ सुनेंगे और जहन्नम उनके दरोगा पुकार के कहेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई गवर्नर नहीं आया था? कहेंगे आया था। कालू बला, हाँ हमारे पास आया था। कद जाअना नज़ीर, आ चुका था हमारे पास गवर्नर। वकुलना मा नज़्ज़लल्लाहु, लेकिन हमने क्या कहा? नहीं नहीं, ये अल्लाह ने नाज़िल नहीं किया, ये तुम्हारी अपनी ख्वाहिश है। तुम खुद ऐसे चाहते हो हम ऐसी ज़िंदगी गुजारें, तो हम हमें खुद से बता रहे हो, ये कुरान में ऐसा कुछ नहीं। इन अंतुम इल्ला, हम मानते हैं कि हमने बहुत बड़ा धोखा खाया, हम बड़ी गुमराही में पड़े। और वो कहेंगे कि काश हम सुन लेते, हम अकल से काम लेते, तो आज हम आग में ना होते। ये एक पछतावा है, एक हसरत है, ये बहुत बड़ा खौफ है जो जहन्नम वालों के मकालमे के ज़रिए अल्लाह ने बताया। फ़ातरफ़ू बिज़ंबिहिम, एतराफ़ करेंगे, कॉन्फेस करेंगे अपने तरफ उसका जुर्म का। हाँ, अल्लाह कहता है फिर उस एतराफ़ का क्या फ़ायदा? अब क्या फ़ायदा? लानत है, अल्लाह कहता है फ़सौक़ल लिअस्हाबिस, लानत है आग वालों के लिए। फिर वो लोग जो डरते हैं अपने रब से बिन देखे, जो अपने रब के अहकामात को वायलेशन से डरते हैं बिन देखे, जिन्होंने अभी रिज़ल्ट का दिन नहीं आया, उन्हें जहन्नम में नहीं डाला गया, उन्हें खौफ है कि कहीं ना हम जहन्नम में डाले जाएंगे। वो फेयर है जो आपको क्या करेगा? उनके लिए मग़फ़िरत भी है और अजर कबीर भी है, जो आपको ये इनाम अता करेगा। और तुम बात को छुपा के करो या ज़ाहिर करो, वो तो दिलों के भेद जानता है। अला यालमु मन खल्क़, मैं अक्सर कोट करती हूँ यार, क्या वही ना जानेगा जिसने तुम्हें बनाया? वो तुम्हारी नीयतों के मुताबिक फैसले करेगा। आसान अमल, आसान अमल, वो सिर्फ टेस्ट किस चीज़ का है? ये ज़िंदगी, मौत, ये आसमान, आसान अमल। कौन परफेक्ट अमल करता है? नहीं, रिक्वायर्ड नहीं है परफेक्शन। आसान, जो हमेशा अपने अमल को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, कंपैरेटिव डिग्री, वो बेहतर करने की कोशिश करता है। पहले वो, मैं गले में दुपट्टा लिया करती थी किसी भी तकरीब में, मैं कोशिश करती हूँ फैला के लूँ, अब मैं कोशिश करती हूँ मैं सर पे लूँ। मेरी ज़िंदगी का हर आने वाला दिन पहले से मैं बेहतर करने की कोशिश करती हूँ। मैं अपने अमाल का मुहासबा करती रहती हूँ, मैं जांचती रहती हूँ। मैं पहले ग़ीबत ज़्यादा किया करती थी, मैं झूठ ज़्यादा बोला करती थी, मैं अवॉइड करती हूँ। पहले मैं महीने के 30 दिन ग़ीबत करती थी, मैं कोशिश करती हूँ कि 4 दिनों तक ले आऊँ। मैं हर दिन इम्प्रूव करने की खुद को कोशिश करती हूँ। जस्ट ये टेस्ट है। अल्लाह कह रहा है जो इम्प्रूवमेंट के सफ़र में है वो कामयाब हो गया, वो पास हो गया। और ऐसी बात नहीं है कि आज लोग झुठलाते हैं। वलक़द कज़्ज़बल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और नेशंस की बात की गई है, उन्होंने भी झुठलाया। फिर अल्लाह की निशानियाँ हैं, फिर कुछ क्वेश्चन है। अल्लाह कहता है वो इंसान जो रहमान के मुकाबले में क्या कोई तुम्हारी मदद कर सकता है? ये गरूर है, ये धोखा है जो काफिर समझते हैं। अल्लाह कहता है वो बेहतर है जिसको हम रिस्क दें, या वो अगर रहमान रिस्क रोक ले तो फिर क्या करोगे? क्या वो इंसान बेहतर है जो मुंह के बल चल रहा है? मुंह के बल, अपनी ख्वाहिशात नफसानी के बल, हैवानियत के बल चल रहा, अपने नफ्स की बात पर लबैक कहना, अपनी विल, उसको अल्लाह ने किस चीज़ से तशबीह दी है? मुंह के बल, जिसमें मुंह रगड़ा जाए। आप मुंह के बल पाँव के बजाय चलना शुरू करें, पाँव अभी मट्टी में
پھٹے جاتے ہیں نا، پاؤں خراب ہوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، پاؤں پہ کریم لگاتے ہیں، شوز پہنتے ہیں، ساکس پہنتے ہیں، فیس کو کیسے بچائیں گے رگڑ کھانے سے، زمین سے؟ مٹی مٹی ہونا تو دور کی بات، پہلے تو ہرٹ ہوگا۔ اللہ کہتا ہے جو اپنی خواہشات کے مطابق چلتا ہے وہ اصل میں نقصان اتنا بڑا اٹھانے والا ہے جیسے منہ کے بال چلنے والا ہو، اور وہ جو لوگوں میں صراط مستقیم پہ چلتا پھرتا ہے وہ بہتر ہے۔ ان سے کہو، تیسرا پارٹ اس صورت کا، مطلب سیکنڈ پارٹ کا پھر تیسرا پارٹ، ان سے کہو کہ وہ جس نے تمہیں کان دیے، آنکھ دیے، دل دیے، تم اس کا کم شکر کرتے ہو۔ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں بسایا، پھر تم اسی کی طرف لوٹو گے۔ اور وہ صرف ایک بات پوچھتے ہیں، ہم نے بہت سن لی باتیں، آپ ڈراتے جا رہے ہیں، ڈراتے جا رہے ہیں، آخرت کے دن ہوگا، ججمنٹ ہوگی، اگر آپ اتنے ہی سچے ہیں تو بتائیں ہمیں اس کی ڈیٹ دے دیں، فائنل پیشین وہی کر دیں۔ قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، بس اللہ کو بتائیں۔ اللہ نے جس چیز کو غیب میں رکھا ہے اس کی کھوج میں بھی نہیں لگنا، میں تو صرف آپ کو وارن کرنے والا ہوں۔ اور اللہ آخر میں کہتا ہے قل ارائیتم، ان سے کہو، ان اصبح ماؤکم، اگر وہ لے جائے پانی کو، پانی کے چشموں کو، پانی کے، اور کہتے ہیں جہاں سے پانی سپلائی کیا جائے اس کو کیا کہیں گے؟ سورس آف واٹر، سورس کو لے جائے، فمن یاتیکم بماء معین، تو کون تمہیں پانی لا کے دے سکتا ہے؟ اللہ نے اس صورت میں زندگی موت کی بات کی، زندگی کو اللہ نے بہت سی جگہوں پر کہا پانی میں ہر چیز کی زندگی ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ زندگی بخشنے والا پانی ہی تمہیں اس پلانٹ سے ختم کر دے، کیا کرو گے؟ اور اللہ کہتا ہے میں نے جب اپنی حکومت، اللہ کہتا ہے میں بادشاہ ہوں، اس صورت میں اللہ نے کہا اللہ کے پاس بادشاہی ہے، اور اللہ کہتا ہے میں نے اپنا عرش کس پہ رکھا؟ پانی پہ رکھا۔ اور پانی جب آتا ہے بارش کی صورت میں، اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ اللہ اپنی طرف سے پانی آپ کو رحمت کی صورت میں دیتا ہے، اور جب قرآن آتا ہے تو وہ اوپر سے بارش کی صورت میں اللہ کے احکامات روشنی کی صورت میں نازل ہوتے ہیں، ڈراپلیٹس آف لائٹ۔ تو پانی سے بات ختم کر کے بادشاہت سے جب اللہ نے شروع کی تو زندگی موت کی بات ایسے ہے جیسے پانی کی بات۔ اللہ کہتا ہے پانی ہی ختم کر دوں تو کیا